کام کریں، محنت کریں. جیسے کہ ماریا بی نے بھی کہا، جیسے کہ میں بھی پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنے گھر سے سلائی شروع کی. زمانے میں یقین کریں کہ ایک سوٹ کی سٹچ تھی سمپل سوٹ کی 50 روپیز. تو 50 روپیز سوٹ پہ بھی میں نے کام کیا. آپ نے جب کام سٹارٹ کیا کیا مشکلات تھیں، کیسے اس فیلڈ میں آئیں؟ میری امی نے بھی اپنا تھوڑا سا زیور بھی بیچا تھا شروع میں گھر سے کپڑے بھی بیچے ہوئے ہیں، خود میں نے سٹچنگ بھی کی ہوئی ہے، خود کڑھائی بھی کی ہوئی ہے. ختیجہ جو سب سے پہلی بیوی تھی تو وہ فیبرک کا ہی بزنس کرتی تھی، اور الحمدللہ وہ جو بزنس کرتی تھی وہ پیور فیبرک کا کرتی تھی. اور میں نے جو سٹارٹ لیا نا جب مارکیٹ لیول پہ، تو میں نے پیور کا ہی سٹارٹ لیا. اور ایک نشہ نہیں ہے پیور فیبرک پہننا. اس وقت یہ جو میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے نا، اس وقت اس کی قیمت ہے 30 to 35,000. صرف پیور قمیض دوپٹہ اینڈ ٹراؤزر جو بھی ہے نا، 35,000. کیا یہ ایک یہ کہتے ہیں نا کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہوتا ہے ادھر رہنے والی عورت یہ افورڈ کر سکتی؟ میں اللہ نہ کرے کوئی شیخی نہیں بگاڑی. مجھے بھی پتا تھا میں نے دوڑنا ہے، میں نے بچوں کے لیے رزق کمانا ہے، میں نے اپنے گھر کے لیے رزق کمانا ہے. تو دین میں گھر سے جب باہر نکلی تو مجھے یہ چیزیں جو تھی نا وہ میری پاور تھی. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شریعہ کوکنگ اینڈ ولاگ. جی ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو رات کو جی میں نے دیکھا ماریا بی کا پوڈ کاسٹ تھا، آج سے تقریباً 5 منتھ پہلے کا تھا. تو میری نظر سے مس کے رات کو گزرا، میں نے اس کو دیکھا تقریباً 1 گھنٹہ سے ابو کا تھا. بڑی ہی مس کے وہ باتیں کلک کی جو میرے ذہن کے مطابق ہیں، جو میں کہنا چاہتی ہوں. تو آپ یقین کریں کہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں بول رہی ہوں نا. تو کیونکہ ماریا بی نے بھی بتایا، ماریا بی ماشاءاللہ کتنا بڑا اونچا برانڈ ہے، ان کا کتنا نام ہے، وہ کتنی فیمس ہے، اور اپنے بزنس کو کس طرح انہوں نے اس کے ترقی کی طرف گامزن کیا. تو آج ماشاءاللہ ان کا دنیا میں ایک نام ہے نا. تو میرے کہنے کا مقصد تھا کہ آج کل اس کی جو بہنیں بڑی پریشان ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ملک کے جو حالات ہیں، ایک بندے پہ ڈیپینڈ کر کے گھر کبھی بھی نہیں چل سکتا، نہ چلے گا اس دور میں. تو اس لیے میری وہ بہنیں جو مجبور ہیں، جو کام کرنا چاہتی ہیں، کچھ بہنیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو صرف یہ لالچ ہے کہ ہم جی اس پہ آئیں، کیا کہتے ہیں جی، چینل بنائیں تو پتہ نہیں فردن ہم بھی بڑے فیمس ہو جائیں گے، ہم بھی سیلیبریٹی بن جائیں گے، ہمیں بھی لاکھوں کے حساب سے ارننگ آنا شروع ہو جائے گی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اس سے پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ تقریباً 2.5 سے 3 سال ہونے والے ہیں میرے چینل کو، مگر ابھی تک مجھے 1000 روپیز بھی میں نے ارن نہیں کیے. میں بھی اس منتھ کے مڈ میں آج کچھ اماؤنٹ آئی تھنک اتنی ہوگی 28 یا 30,000. کیا 28 یا 30,000 کے لیے میں 2.5 سال سے یا 3 سال سے میں یوٹیوب پہ بھی اس کے کام کر رہی ہوں؟ یہ صرف ایک سمجھ لیں وقت پاس کرنے کا ذریعہ تھا، یا میرا مین جو مقصد تھا وہ اپنا جو میسج تھا نا وہ لوگوں تک پہنچانے کا تھا کہ کام کریں، محنت کریں. جیسے کہ ماریا بی نے بھی کہا، جیسے کہ میں بھی پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنے گھر سے سلائی شروع کی. گھر میں یقین کریں جب مجھے نیڈ تھی نا کام کی، تو گھر میں نے اس وقت اس زمانے میں یقین کریں کہ ایک سوٹ کی سٹچ تھی سمپل سوٹ کی 50 روپیز. تو 50 روپیز سوٹ پہ بھی میں نے کام کیا، کیونکہ اس زمانے میں 50 روپیز میں بھی گھر کا جو دن کا ہوتا ہے نا کھانا پینا یا بچے کا دودھ وغیرہ، جب میرا بچہ ایک تھا میرے گود میں نا، جب مجھے ضرورت پیش آئی کہ مجھے کام کرنا چاہیے، مجھے اپنے بچے کو پالنا ہے، مجھے اپنے بچے کو اپنے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی خواہش، اپنے ذہن کے مطابق اس کو ایجوکیشن دلوانی ہے. تو الحمدللہ ہسبینڈ تھے، مگر پھر بھی میں یہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ بہت اچھے سکول میں جائے، بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے، اچھی گیدرنگ میں وہ بیٹھے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میرے پاس جو سکل تھی، حالانکہ اس زمانے میں جس زمانے میں ہم نے اس کے ٹیکنیکل کالج سے کورس کیے تھے، کچھ میں نے کوکنگ بیکنگ کا بھی کیا تھا، چائنیز ڈشز کا بھی کیا تھا، فیبرک میکنگ کا، ڈیزائننگ کا بھی کیا تھا، اور ادر کورس بھی میں بعد میں بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی نا. مگر موجودہ جو آپ کے پاس یہ موبائل فون ہے نا، جس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور اس کا یوز آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھا جائے تو جتنا اس کے یہ چینج ہو چکا ہے نا، ڈیزائننگ وغیرہ چینج ہو چکی ہے،
تو ہم نے اگر اس زمانے میں سیکھا پیٹرن کے حساب سے मींस के हमने पहले ड्रॉ करना होता था, फिर उस पे मींस के सारा उसको जो हमारी टीचर होती थी उसको पास करती थी. एक वो कहते हैं ना एक पॉइंट का भी वो होता था, तो वो पूरा पेपर हमारा ब्राउन पेपर वो वेस्ट हो जाता था ना. फिर हमें दोबारा पनिश के तौर पे हमें बैठ के काम करना पड़ता था. इसी तरह बड़ी बड़ी टेबल्स मींस के कॉलेज में लगी होती थी. मैं टेक्निकल कॉलेज की बात कर रही हूँ ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक था तो इसलिए कर रहे. मेरा मुख्तसर मेरे कहने का ये तरीका है. तो आजकल तो ये मींस के है ही नहीं है कि आप कोई कॉलेज ज्वाइन करेगा, आप कोई इंडस्ट्री होम ज्वाइन करें, आप जैसे हर चीज इस मोबाइल में मौजूद है, जिसका अगर आप सही इस्तेमाल करें ना तो आप किसी के मोहताज नहीं रह सकते. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है ना. अगर आपको स्टिचिंग से दिलचस्पी है, आप स्टिचिंग चैनल का मींस के एक टाइप करेंगे ना, ओनली स्टिचिंग टाइप का करेंगे ना, तो दर्जनों के हिसाब से आपके आगे ऑप्शन आ जाएंगी. उसमें कटिंग होता है, उसमें स्टिचिंग होता है, उसमें फार्मूलाज होते हैं, उसमें नेक बनाने का डिजाइनर नेक जो होते हैं उनको बनाने का तरीका A to Z. आप ट्राउजर पे आ जाए उसकी कटिंग होती है, इवन के लहंगा गरारा A to Z जितने भी इसके फैशन में जो ट्रेंडिंग होते हैं वो चीजें आजकल हैं. मैं भी अगर अब मुझे कभी जरूरत पड़े ना थोड़ा बहुत अपना काम करने के लिए कि मैंने ये अपने लिए स्टिच करना है, अलबत्ता तो अभी इतनी हिम्मत ही नहीं है, टालती रहती हूँ. मगर कभी कभार फिर वो एक जुनून सा चढ़ जाता है कि नहीं मैं खुद से करूँ तो मैं कर लेती हूँ. इसी तरह कोई ना कोई वीडियो देख के, जैसे कोई नेक लाइन बनानी है खूबसूरत सी, आजकल लेस और बड़े अच्छे तरीके आ गया है, गम के साथ चिपकाने का बड़ी आसानी आ गई है, इस तरह सफाई भी बहुत ज्यादा आती है. तो मेरे कहने का मकसद था मारिया जी का जो पॉडकास्ट मैंने रात को देखा है ना, आप भी इसको देखिएगा. मैं लिंक इसका इसके डाल दूंगी, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो में भी शो हो जाएगा. आपने जब काम स्टार्ट किया क्या मुश्किलात थी, कैसे इस फील्ड में आई? मेरी अम्मी ने भी अपना थोड़ा सा जेवर भी बेचा था शुरू में. मैं घर से कपड़े भी बेचे हुए हैं, खुद मैंने स्टिचिंग भी की हुई है, खुद कढ़ाई भी की हुई है. कि मारिया भी खुद कहती है कि मैंने स्टिचिंग भी की, मैंने एम्ब्रॉयडरी भी की, क्योंकि उन्होंने भी आगे बढ़ना था. उनके हस्बैंड का जैसे कि सेपरेशन हो गई थी, 2 बच्चे थे, तो उन्होंने सोचा था कि मैंने खुद से कुछ बनना है. और उस बंदी ने फिर जो मेहनत की है ना वो अपनी पॉडकास्ट में बता रही हैं. आप देखिएगा, मैं भी बहुत मुतासिर हुई और मुझे मजीद हिम्मत भी मिली, मुझे मजीद मुझे खुशी भी हुई कि देखे कि एक बंदा अपना वो होता है ना कि समटाइम अल्लाह ताला आपको मिसके इस तरह दे देता है, कोई ऐसा टारगेट दे देता है कि देखो तुम इसमें क्या कर सकती हो. बेशक कि उस बंदी को जिसको ये सोच आती है उसको पता होता है कि मेरे अंदर ये क्या क्या स्किल है, मैं किस तरह आगे बढ़ सकती हूँ. हालांकि माशाल्लाह एजुकेशन में भी माशाल्लाह वो ठीक ठाक है, मगर उन्होंने फैब्रिक का बिजनेस यूज किया जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने एम्ब्रॉयडरी भी की, मैंने कटिंग स्टिचिंग भी की, घर में बैठ के भी की. आज देखे माशाल्लाह उनकी शान देखे, उनका अरूज देखे. तो क्या ये आप जैसी औरतें जो नीडी हैं, जो करना चाहती हैं, मैं कहती हूँ इस वक्त बेस्ट जो काम मैंने कि फौरन अर्निंग आप कर सके वो सिर्फ स्टिचिंग का है. आप कोशिश तो करें, आप अपने नेबर से फिलहाल आप 1000 चार्ज ना करें, आप 700-800 चार्ज करें. सूट का 1 घंटे की मार होता है अगर कटिंग किया हुआ हो. सूट स्टिच करने की सिर्फ 1 घंटा लगता है अगर आपका मींस के स्टेमिना है. लाइक अब मैं अपनी बात करूँ ना तो वक्त के साथ मेरा वो स्टेमिना नहीं रहा. एक टाइम था कि मैं दिन का 7 सूट सीती थी, तो 50 रुपए के हिसाब से 7 सूटों की कितनी अमाउंट बन जाती है आप देख ले इसको ना. तो उस वक्त यकीन करें कि मेरे ड्रॉर्स में से ना पैसे खत्म नहीं होते थे. यानी बच्चे का लैक्टोजिन, बच्चा दूध पीता था, आपको पता उस वक्त भी एक्सपेंसिव था, जहां इसकी सैलरी कम हो या इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता कि घर को मैनेज करें या बच्चे को दूध पिलाएं. बार टाइम ऐसा मिसके आ जाता है कि बच्चा सिर्फ डब्बे के दूध पे ही पालना पड़ता है. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था कि बच्चा सिर्फ डब्बे के दूध पे ही पालना था. लैक्टोजिन उस वक्त मेरे ख्याल में 80 रुपए का था डिब्बा. अब ग्राम्स का नहीं मुझे पता कि कौन से ग्राम कितने ग्राम का था ना, मगर एक शाम से दूसरी शाम तक वो डिब्बा खत्म हो जाता था. अब देखा जाए तो मैं बता रही हूँ कि उस जमाने में 50 रुपीज में घर का यानी खाना पीना जो होता है ना 2-3 बंदों का वो पक सकता था. उसमें मिसके चिकन भी आ जाता था, दाल चावल सब्जी ब्ला ब्ला जो भी होता था ना, दूध वगैरह भी. यानी कि उस वक्त मेरा हमें रेट था 5-6 रुपए लीटर था दूध का रेट ना. तो घर के लिए दूध भी आ सकता है, आप खुद ही इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आज से ये मैं तकरीबन
28 साल पीछे की बात कर रही हूँ, उस वक्त आपको सब रेट्स पता चल जाएंगे, दूध का क्या रेट था, चिकन का क्या रेट था, दाल चावल वगैरह का क्या रेट था, इसलिए मुमकिन था 50 रुपए में घर चलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 300-350 रुपया दिन का घर में बच्चे के साथ, यानी बच्चे की टेक केयर भी करनी, बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना, गर्मी सर्दी का भी ख्याल रखना, और साथ साथ मैंने सूट भी स्टिच करना है। मेरा होता था फार्मूला ये होता था कि सुबह के टाइम पे सफाई वगैरह जो भी है कर करा के तो मैंने कटिंग कर लेनी ना, जितने भी सूट होने हैं कटिंग कर लेनी, और साथ साथ में उनकी मैचिंग नलकियां वगैरह रख लेनी। जैसे ही शाम को ज़ाहिर बच्चे का स्टेमिना डाउन हो जाता है, सोना शुरू हो जाता है बच्चा, तो जब बच्चे ने सो जाना, आप यकीन करें मैंने शाम 7 बजे काम शुरू करना ना, तो मैंने रात 1-1:30 बजे तक 5 से 6 सूट मैंने सी लेने ना। अगले दिन उनको इस्त्री करके मैंने जिनके होने उनको दे देने, वो आके ले जाया करती थी। यानी दोस्त यार ही थी जिन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि तुम्हारे पास ये स्किल है, तुम काम करो, और मैंने अल्लाह का शुक्र है कि ये कदम उठाया। फिर रफ्ता रफ्ता इसके अब बंदा होता चला जाता है, फिर और रास्ते भी खुलते जाते हैं। आपका अगर ज़हन है, आपका इसके इसमें अगर दिलचस्पी है, सबसे बड़ी बात होती है दिलचस्पी है, और सबसे बड़ी बात ये होती है अज़्म होता है कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मैंने किसी से मांगना नहीं है, चाहे वो बहन है, वो भाई है, वो मिलने जुलने वाले हैं। मैंने किसी को अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताने सिवाय अल्लाह के। अल्लाह जानता है, मैं जानती हूँ, और मेरा अल्लाह पूरा करेगा। मुझे अपने स्किल पे यकीन है, ये स्किल आपके अंदर होना जरूरी है। बाकी रह गई ये वाली बात, आप कहें कि मैं YouTube पे आके फौरन फौरन अर्निंग शुरू कर दूंगी। आपके बच्चों का इस वक्त टाइम है उनको अच्छा खिलाने का, पिलाने का, पढ़ाने का, जितना आप अफोर्ड कर सकती है उसके मुताबिक अगर आप अर्न करना चाहती है, तो सबसे पहली मेरी ये एडवाइस है कि आप घर से सिलाई शुरू करें। अगर आपके पास अदर कोई और हुनर है तो आप उसको बुरे ख्याल लाएं। तालीम है तो क्या ही बात है, जॉब देखा जाए तो तालीम की बिना पर इस वक्त मास्टर लेवल लड़की को भी अगर ये मिलती है ना गवर्नमेंट स्कूल, अलबत्ता तो गवर्नमेंट स्कूल की जॉब है ही नहीं है ना, मिलनी नहीं है, बैन है। अदर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें क्या है, अगर आपने मास्टर भी किया होगा ना तो आपको क्या मिलेगा, 12 से 13,000 तक इस वक्त दे रहे हैं टीचर्स को ना। कितने सालों से जो काम कर रही है ना उनको भी। अब देखिए एक औरत घर छोड़ के अगर जाती है, वो तैयार श्यार हो, कपड़ा इस्त्री कर, ये कर वो कर, घर भी नेग्लेक्ट हो, तकरीबन 4 से 5 घंटे वो स्कूल में लगा के आती है सिर्फ 12 से 13 हज़ार रुपए के लिए। काम को इसीलिए इसके अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया है कि अपना काम करे, अपना बिजनेस करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ कि जब मुझे अपने लिए एक सूट बनाना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि बच्चों के लिए इसके करती थी, जो भी मैं काम करती थी उसमें बच्चों का जो होता था, इसके खाना पीना हो गया, उनके कपड़े हो गए, जूता हो गया, दूध हो गया, इस चीज को ही पूरा करती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब इसके मार्केट में निकली, दरवाजे अल्लाह ताला खोलता चला गया मेरे लिए। कुछ मेरा जहन भी ऐसा था कि मैंने आगे बढ़ना है। ये आप मारिया बी का पॉडकास्ट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो अज़्म क्या था। मारिया बी का भी जो जुनून था वो क्या था, वो जुनून आपको आगे लेके जाता है। वो अज़्म जो होता है ना, आपने इसकी ये अज़्म कर लेती है ना कि मैंने अपने हालात को चेंज करना है, मैंने अपने हालात को चेंज करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो वो चेंज हो सकते हैं, वो हुए हैं, वो मैंने किए हैं। वो मारिया बी की सक्सेस से आपको पता चलेगा कि इस काम में कितनी बरकत है। मैं फैब्रिक का क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक में वाकई बहुत ही बरकत है। और देखा जाए ये हमारे मिसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत बीबी मिसके बीबी खतीजा जो सबसे पहली बीवी थी, तो वो फैब्रिक का ही बिजनेस करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बिजनेस करती थी वो प्योर फैब्रिक का करती थी। और मैंने जो स्टार्ट लिया ना जब मार्केट लेवल पे, तो मैंने प्योर का ही स्टार्ट लिया, प्योर फैब्रिक, यानी जिसमें मेरा जितना भी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होता था वो प्योर होता था। प्योर पहनने वालों को पता होगा कि इस वक्त प्योर की क्या रेट है, क्या डिमांड है। मगर मैं जब काम करती थी उस वक्त प्योर का जो स्टार्ट रेट था ना, यानी 25 प्लस ग्राम जो क्रिंकल शिफॉन होता था ना, उस पर मेरा एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा बनता था ना। तो ये इसके 25 प्लस इस चीज को आम बंदा तो नहीं जान सकता, हाँ जो पहनने वाले हैं उनको पता होगा। प्योर भी एक नशा है। जो जो पहनने वाले हैं ना मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं क्या मैं गलत कह रही हूँ कि प्योर एक नशा नहीं है, प्योर फैब्रिक पहनना। इस वक्त ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, इस वक्त इसकी कीमत है 30 to 35,000।
सिर्फ प्योर कमीज दुपट्टा एंड ट्राउजर जो भी है ना, 35,000। क्या ये एक ये कहते हैं ना कि तनख्वाहदार जो तबका होता है उधर रहने वाली औरत ये अफोर्ड कर सकती? मैं अल्लाह न करे कोई शेखी नहीं बगाड़ी। मैं इससे पहले भी जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डली है, यानी ब्लैक जो क्लची का मैंने पहना हुआ था, तो देखा जाए तो वो भी इतनी अमाउंट का था, यानी तकरीबन 30 से 35 हजार की अमाउंट का ये सूट बनता है। जो पहनने वाले हैं वो कमेंट्स करके लाजमी बताएंगे क्या मैं झूठ कह रही हूँ या मैं सच कह रही हूँ ना, क्योंकि इसकी फील एंड फॉल जो होती है ना, वो जो होती है वो आप इसको जो पहनने वाला है ना वो ही बता सकता है आके। इसको आप अगर कहीं पहन के चले जाएं किसी भी गैदरिंग में, किसी भी अच्छे मिस के जगह पे आप पहन के जाएंगे ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपने कितने वाला सूट पहना। ये खुद सूट जो होता है, ये फैब्रिक जो होता है, ये खुद बताता है कि मैं इतने का हूँ। इसकी फील एंड फॉल जो होती है ना, वो पहनने वाले समझते हैं। उस तबके को बताने की जरूरत नहीं होती कि ये मैंने 35,000 वाला सूट पहना हुआ है, ये मैंने 30,000 वाला सूट पहना हुआ है। ये कपड़ा खुद बताता है, जो प्योर होता है ना वो खुद बताता है। तो मैं जी मारिया बी का आप ये लाजमी देखिएगा और इसको सुनिएगा, एक टाइम निकालिएगा, 1 घंटा कुछ मिनट की ये इनका पॉडकास्ट है। मुझे बहुत क्लिक किया, इनकी सक्सेस से बहुत क्लिक किया अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुझे भी पता था मैंने दौड़ना है, मैंने बच्चों के लिए रिज़्क कमाना है, मैंने अपने घर के लिए रिज़्क कमाना है। तो देन मैं घर से जब बाहर निकली तो मुझे ये चीजें जो थी ना वो मेरी पावर थी। ये जो सोच थी ना कि मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलना है, मैंने इनके जो पर्सनैलिटी है उसको अपने मुताबिक बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है मेरे बच्चे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका खाना पीना, उनका पहनना ओढ़ना, उनकी एजुकेशन। इंशाल्लाह आगे भी, अभी तो ये मुकम्मल नहीं है, मेरे हिसाब से मुकम्मल नहीं है, इंशाल्लाह इससे भी आगे लेके जाए अल्लाह ताला, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। तो मेरा उन बहनों के लिए पैगाम था कि ये आप छोड़ दें कि आप यूट्यूब से अर्निंग करेंगे। अब मैंने बताया ना कि अगर यूट्यूब की अर्निंग अगर इसमें आ भी गई ना तो ज्यादा से ज्यादा 28 से 30 हजार होगी। तो ये मेरा सूट जो मैं इसके इस तरह के पहनती हूँ, ये एक सूट 30 से 35 हजार का है। तो क्या मैं यूट्यूब की अर्निंग के लिए काम कर रही थी कि मुझे वो पैसा आए हुए? मेरा तो मुझे का कोई ठिकाना ही नहीं होगा, मेरा जैसा तो कोई होगा ही नहीं है, मेरी अर्निंग आ गई है। ये नहीं है, ठीक है, अगर ये सिलसिला में इसके अच्छा चलता रहा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूं, ना चला तो मैं इसको वॉक आउट कर दूं, क्योंकि मेरे और काम भी बहुत ज्यादा है। बिजनेस ऐसी चीज है जिससे आपके मुल्क को भी बहुत ज्यादा फायदा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जहां हो, आपको पता है, इससे हमारे मुल्क को, हमारे मीन्स की जनरेशन है, इन्होंने फायदा लेना है। जनरेशन को आगे बिजनेस दें, उनका जहन जो है बिजनेस की तरफ लेके आए, न्यू जनरेशन का। ठीक है, उनको डिग्री जरूर दिलवाएं मगर उनको लेके आए बिजनेस की तरफ। ये देखिए जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, इन्होंने इंशाल्लाह आना बिजनेस की ही तरफ है। पता नहीं ये जो यूट्यूब साल रह गया, चंद माह रह गया, अभी के अभी खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इन लोगों ने भी बिजनेस की तरफ आना है, तो हमें खुशी होगी। तो आज की वीडियो लंबी हो गई है इस टॉपिक पे, तो मजीद टॉपिक के लिए फिर बात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।